We're still at 22. We did one part yesterday. Chapter 22. This is from the Nutshell series. Captain Subramaniam's book. That is curve of statical stability, basically, or GZ curve, as it is called. So now we're coming on to how many types of GZ curves are there. So types of GZ curve is what? Types of GZ curve. And basis, shape of GZ curve. Basis the shape. How many types are there? So basis the shape, there will be three types. Giving them some name: T1, T2, T3. There are three types of GZ curves, calling it as type 1, type 2, type 3, or T1, T2, T3. So T1 curve was what we had done yesterday and drawn. Basically, the curve resembles a bell-shaped. So bell-shaped curve. And this curve was drawn yesterday. So T1 vessel is basically departure port condition. Departure port condition. It is the ideal condition. At departure port, the vessel will have no list. So list is 0. Vessel will be upright always on departure port. And her GM will be positive. GM will be positive. So departure port condition, we're talking about a bell-shaped curve. List is 0. GM is positive. This is the shape of the curve. Now, this curve is not side specific. I can say this curve is there on the starboard side, and I can also say this side is port side. So it is not specific to any side. ये port side curve भी बन सकता है. अगर मैं इसको ये port side बोलता हूं, and I ask you to draw a starboard side curve, तो वो कहां बनेगा? वो यहां बनेगा. थर्ड क्वाड्रेंट में. क्यों? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव साइड है तो ये नेगेटिव साइड है. ये नेगेटिव साइड हो गई अगर ये पॉजिटिव है. अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गई. Negative of negative will make this also a positive curve.
This curve in any case positive or positive, so this curve is positive curve. Similarly, this curve is also a positive curve. It is on the negative side with a negative value. So this will become a positive curve also. So if this is starboard, this is port. If this is port, this is starboard. So this becomes a two-sided curve. In the exam, we will always be drawing one-sided only, just this side, bas. We'll never be drawing two-sided. This is only for your orals. Orals में पूछ लेते हैं. सर ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला एक बार फिर से बता देंगे. ये पॉजिटिव है. अगर ये पॉजिटिव साइड है तो ये नेगेटिव साइड है एक्स एक्सिस पे. यस सिमिलरली अगर ये वाई एक्सिस पे ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है. यस सर. तो ये कर्व जो बना थर्ड क्वाड्रेंट में, एक्स एक्सिस पे नेगेटिव है, वाई एक्सिस पे भी नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव. सो ये बन गया पॉजिटिव कर्व. ओके. तो सिमिलरली ये भी पॉजिटिव है. इसलिए these are the two-sided curves. T2 curve is a curve which looks something like this. T2 curve looks something like this. ये T2 कर्व है. पहले वो नेगेटिव साइड पे जाता है तो इसका जीएम जो होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि टेंजेंट नेगेटिव साइड पे जाएगा. और जहां पे ये काटेगा वापस वो एंगल ऑफ लॉल कहलाएगा. तो ये वाला जहाज जो है इसका जीएम नेगेटिव है, इनिशियल जीएम. जिसकी वजह से ये जहाज एंगल ऑफ लॉल पे चला गया. एंड सो देयरफॉर द वेसल विल नॉट बी अपराइट. एंड बिकॉज ये एंगल ऑफ लॉल पे गया है तो जनरली ये जहाज जनरली ये एट सी होता है. पोर्ट पे भी हो सकता है बट जनरली मोस्टली ये जहाज एट सी है, एंगल ऑफ लॉल पे जाता है. क्यों? क्योंकि ये अपने लिक्विड्स कंज्यूम करता रहता है, फ्री सरफेस बढ़ा देता है एंड एट सम पॉइंट इन टाइम इसकी फ्री सरफेस जीएम सॉलिड से ज्यादा हो जाती है. एंड सो देयरफॉर ये जहाज एंगल ऑफ लॉल पे चला जाएगा. अगर मैं इसको स्टार्बोर्ड साइड बोलता हूं and I ask you to draw a port side curve of T2 तो वो कैसा होगा? वो कुछ ऐसा होगा. वो पहले फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा और फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा. So this will be a two-sided T2 curve with this being the angle of Lowell on the other side. Which will also be the same.
So if this is starboard, this is port. If this is port, this is starboard. ये हो गया हमारा T2 कर्व. और सर ये जो 10 डिग्री लिया है, ऐसे ही आपने जस्ट दिखाने के लिए लिया या हमेशा ऐसा ही होगा 10 डिग्री? नहीं नहीं, ये तो मैंने रैंडम है, तो रैंडम वैल्यूज हैं जस्ट दिखाने के लिए. ये तो वेरी करती रहेगी, किसी जहाज पे 5 होगी, किसी में 15 होगी, किसी में 20 होगी. तो एंगल ऑफ लॉल भी बदलता रहेगा, कंडीशन टू कंडीशन बदलेगा, और कंजम्पशन होती रहेगी और बदलता रहेगा. एक नया एंगल ऑफ लॉल आ जाएगा. T3 T3 कर्व जो है कुछ ऐसा लगेगा. T3 कर्व कुछ ऐसा लगेगा. सो ये पॉइंट जहां पे एक एक्स एक्सिस को काटेगा, ये मुझे लिस्ट देगा. And this list could be starboard or it could be port. ये T3 कर्व कहलाएगा. तो ये लिस्टेड जहाज का कर्व है. सो जनरली मेरा जहाज जब इस कंडीशन में होगा, I'll be working cargo in port. So I'll be in port working cargo, because every day I will have a list, and therefore my vessel is going to be in listed condition. Well, how is my GM at that point in time when I'm listed? My GM is positive. Positive. It is just that my weight is off centered, and since my weight is off centered, so therefore I'm listed. So when I'm working cargo, I become a T3 curve. Prior departure, I become a T1, and I sail out in this condition. And if I become careless at sea, then I can get into T2. Then from T2, I have to revert back to T1 to become seaworthy. When I am at angle of lull in this condition, I am not seaworthy. When I am in T3, the pilot will not come on my ship, because one of the conditions of the pilot is the vessel should be upright. So no pilot will come and board me in a listed condition. That is the reason why we try to make the vessel upright at all times. If I say this is a starboard side and I ask you to draw a port side curve for this, then the port side curve will be a continuation of this and then this. Same thing condition चल रही है. अगर ये पोर्ट है तो ये स्टारबर्ड है. तो ये हमारे तीन सर T1 जो T2 आपने T3. पहले पॉजिटिव और नेगेटिव वाला बताया, तो उसके हिसाब से तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट से शुरू नहीं होगा? नहीं, negative of negative. This is also positive.
यस सर, बट जो स्टार्टिंग में जो इधर इस साइड पे लिया वो तो नेगेटिव है ना सर, जो स्टार्टिंग है, तो नेगेटिव के लिए ऊपर से स्टार्ट नहीं हुआ। ये तो एंगल ऑफ लोल वाला जहाज है ना, नहीं नहीं सर, इसमें इसी ये में, इसी में, T3 में ही। T3 में। तो ये जो जहाज है, इसका ये जो इनिशियल 0 डिग्री का जो राइटिंग लीवर है, यस सर। वो नेगेटिव वैल्यू है। यस सर। तो ये मेरा जहाज है, और मेरे जहाज का स्टार्बोर्ड साइड पे वेट ज्यादा है। पोर्ट एंड स्टार्बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में स्टार्बोर्ड का ज्यादा है। एज ए रिजल्ट माई डब्ल्यू इज एक्टिंग डाउनवर्ड लाइक दिस, so therefore my vessel starts to list to starboard। अब ये 0 डिग्री से शुरू हुआ है लिस्ट करना, 5 डिग्री पे पहले आया। तो इस वक्त मेरा राइटिंग लीवर मुझे किस दिशा में लेके जा रहा है? मेरे को स्टार्बोर्ड लेके जा रहा है, यानी कि the writing lever is taking me away from the upright। Away from the upright means negative, towards the upright means positive। So because ये मुझे away from upright लेके जा रहा है, तो नेगेटिव राइटिंग लीवर है, नेगेटिव राइटिंग लीवर है 0 पे। जैसे जैसे मैं 10 डिग्री पे पहुंचा, मेरा राइटिंग लीवर 0 हो गया। नाउ माई वेसल डज नॉट हैव एनी राइटिंग लीवर, so my vessel is stuck at 10 degrees starboard। अगर मैं यहां से इस जहाज को एक पुश देता हूं और ये 15 डिग्री तक जाता है, ये वापस 10 पे आ जाएगा। इसकी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की पोजीशन 10 डिग्री की है। अगर मैं इसको इधर से पुश करता हूं और अपराइट लाता हूं, ये वापस 10 पे आ जाएगा। तो GZ 0 है। इसके बाद अगर मैं और वेट डालूंगा स्टार्बोर्ड में, तो ये और लिस्ट लेता रहेगा टू द स्टार्बोर्ड साइड। तो ये इसकी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। दैट इज व्हाट दिस 10 डिग्रीज इज डिपिक्टिंग। इसलिए 10 डिग्री पे जीजेड की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये जहाज अटका हुआ है 10 डिग्री पे। ये मतलब है इसका। ठीक है, इज दैट ओके? इज दिस फाइन? यस। सो एग्जाम में 99% ऑफ द टाइम्स हमारा T3 आएगा, जीजेड कर्व। 99% तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन जो है सारी की सारी T3 पे होनी है। हमारा जो कर्व है वो ऐसे बनना चाहिए, कोई भी एक साइड का, ये स्टार्बोर्ड साइड का, या इसको मैं पोर्ट का भी नाम दे सकता हूँ, बस वही। टू साइडेड कहीं नहीं बनाना मुझे। टू साइडेड इज ओनली फॉर नॉलेज, नथिंग एल्स। मैं खाली बता रहा हूं बस। एंड 1% चांस है यू विल गेट अ T1 क्वेश्चन। T2 पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, नेवर। सो इट इज ओनली फॉर नॉलेज, नथिंग एल्स। ठीक है, इज दैट ओके? यस सर। अब एक क्वेश्चन देख लो, थ्योरी क्वेश्चन। द GZ curve of a vessel is सर एक बार रिपीट करें, द जीजेड कर्व ऑफ अ the GZ curve of a listed vessel is
not symmetrical, is not symmetrical, or called as asymmetrical. The GZ curve of a listed vessel is asymmetrical about the vertical center line passing through the ship. Passing through the ship. Sir, about the vertical? About the vertical center line passing through the ship. Okay, sir. Explain the above statement. Explain the above statement with the help of sketches. ऑलराइट, अब ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो उसको आंसर कैसे दोगे? और ये 10 नंबर का है. 10 नंबर का मतलब 10 मिनट लगाने हैं आपने. सो आपका आंसर कुछ ऐसा होगा. सबसे पहले तो आप ड्रॉ करोगे बोथ साइडेड T1 कर्व. सबसे पहले तो ये ड्रॉ करोगे, ये वाला. Then you will draw a both sided T3 curve. ये वाला. इसको T2 को गायब कर दो बीच में से, इसकी जरूरत नहीं है. फिर आप एक्सप्लेन करोगे. एक्सप्लेन हाउ T1 curve is symmetrical. You will explain कैसे ये जो T1 कर्व है ये सिमेट्रिकल है. जितना इधर है उतना इधर भी है. ये सेंटर लाइन है. तो अगर ये मेरा कोई जहाज होता, सपोजिंग इसके ऊपर मैं एक जहाज सुपर इम्पोज कर दूं, ये मेरा जहाज है ट्रांसवर्सली लुकिंग. तो ये मेरा जहाज अपराइट है इस वक्त. तो इस जहाज का मेरा कर्व जीजेड कर्व ऐसा होगा. और ये वर्टिकल सेंटर लाइन है. तो जो भी एरिया इधर में है वही एरिया इधर में भी है. जो मेरी आरओपीएस इधर है वही आरओपीएस इधर भी है. सारी वैल्यूज इक्वल हैं. तो ये आप एक्सप्लेन करोगे. अब इधर आ जाओ. इसका जो मेरा जहाज है इसकी इसके अबाउट देखो, इस सेंटर लाइन के अबाउट. यहां पे एक नेगेटिव एरिया है और फिर ये पॉजिटिव बनता है. तो मेरा इस कर्व का जो रिजल्टेंट नेट रिजल्टेंट एरिया होगा वो इस एरिया से
ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा सर। कम होगा सर। सब ये मानते हैं? एवरीबडी एग्रीज? यस सर। Yes, sir. ओके, तो दैट मीन्स मेरी सारी की सारी जो भी वैल्यूज इस एरिया से जुड़ी हुई हैं, यानी कि मेरा ROPS 80 -10 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, सारी चीजें कम हो जाएंगी। मेरा GZ मैक्स, वो जो 8 की 8 वैल्यूज थी जो मुझे वहां मिल रही थी, वो सारी की सारी इस जहाज की कमती हैं। क्यों? क्योंकि ये जहाज लिस्टेड है। यस सर। तो इसका वैनिशिंग भी जल्दी आएगा, इसका वैनिशिंग जल्दी आएगा एज कंपेयर टू दिस फेलो. So this curve about this axis is quite evidently not symmetrical. Does everybody agree on this? Yes. Explain how T3 curve is asymmetrical. Yeah, not symmetrical. Is asymmetrical. ठीक बात है? ठीक बात है। सो ये जो जहाज है ये कुछ ऐसा लगेगा। ये टिल्ट हो गया, लिस्टेड हो गया, और इसके थ्रू इसका W डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। बिकॉज ऑफ सेंटर्ड है। सो एक्सिस जो है इसके अबाउट ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, अगर मेरा ये मेरा जहाज था T1, अब ये जहाज में मैंने एसिमेट्रिकल लोडिंग कर दी या डिस्चार्जिंग करी, मैंने स्टारबोर्ड साइड पे वेट ज्यादा ले लिया। एज अ रिजल्ट मेरे जहाज में एक लिस्टिंग मोमेंट आ गया और मेरे जहाज की केजी भी बढ़ गई, जिसकी वजह से मेरा राइटिंग लीवर बदल गया। इट इज एज इफ मेरी ये बेसलाइन जो थी ये यहां से मैंने उठा दी और मैंने ये बेसलाइन को इधर ले आया। और अब मैं इसको अगर गायब कर दूं तो व्हाट काइंड ऑफ अ कर्व डू आई हैव नाउ? T3. करेक्ट। और मैं कार्गो स्टारबोर्ड में डालता जाऊंगा, ये लाइन और ऊपर जाती जाएगी। तो व्हाट करेक्ट इज सर। हैपनिंग? व्हाट इज हैपनिंग? मेरी लिस्ट बढ़ती जा रही है, ये मेरी लिस्ट है, ये मेरा वैनिशिंग है, ये मेरा ROPS हो जाएगा, एंड देयरफॉर कॉन्सिक्वेंटली मेरी सारी वैल्यूज लेस एंड लेस होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि मैं स्टारबोर्ड ऑफ सेंटर्ड कार्गो ज्यादा डाल रहा हूं, अनइक्वल कर रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये आपका आंसर होगा सारा का सारा इस क्वेश्चन का।
10 मिनट का क्वेश्चन है, 10 मिनट में ये जो लिख सकते हो, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, तो बस इतना ही कर पाओगे, ये 4 चीज़ें, और इसको एक्सप्लेन कर पाओगे एक पेज पे. दैट्स अबाउट इट. आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू राइट अ थीसिस ऑन इट, बिकॉज आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा. सो डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन दिस क्वेश्चन बिकॉज यू नो टू मच. ठीक है, इज दैट ओके? Yes, sir. Any doubts, anybody? Okay. So मेरी सारी की सारी अब अटेंशन T3 पे फोकस करने वाली है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन उसी पे आएगा. न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मेरे को वैल्यूज दी हुई होंगी, मुझे जीजेड कर्व प्लॉट करना पड़ेगा. वो मेरा कर्व जो है T3 वाला बनेगा, और उससे मुझे लिस्ट निकालने को क्वेश्चन बोलेगा. कैलकुलेट द लिस्ट फ्रॉम द प्लॉट. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज गोइंग टू आस्क मी. सो आई हैव टू बी केयरफुल कि मैं प्लॉट करके, सो ग्राफ पेपर विल बी प्रोवाइडेड टू मी इन द एग्जाम. ठीक है, ग्राफ पेपर मिलेगा, प्लॉट करोगे आप, और उससे जहां पे वो एक्स एक्सिस को काटेगा कर्व, वो पॉइंट बनेगी आपकी लिस्ट. वो आप कैलकुलेट करोगे उससे ग्राफ पेपर, ग्राफ स्केल पे, एंड आप उसका आंसर लिख दोगे. 7.5 डिग्रीज, 8 डिग्रीज, 9 डिग्रीज, वट एवर आंसर यू गेट. और अगर आपने पोर्ट साइड से डिस्चार्जिंग करी हुई है, सो आपकी स्टारबर्ड लिस्ट होगी, तो आप कहोगे 9 डिग्री स्टारबर्ड लिस्ट. अगर आपने स्टारबर्ड से पोर्ट में ट्रांसफर किया हुआ है बैलेस्ट, तो दिस विल बी 9 डिग्रीज पोर्ट लिस्ट. कर्व यहीं पे बनेगा. ठीक है, इज दैट ओके? एनी डाउट एनीबडी हैज ऑन दिस? No, sir. Oh, that's how. So basically हम T3 पे अब concentrate करने वाले हैं. That's what we're going to do. ठीक है, इज दैट ओके? एक लास्ट Okay, चीज sir. बता दे, एक लास्ट चीज बता देता हूँ. सो सो calculation of GZ curve. Calculation of GZ values is done by two methods. Basis methods of calculation. Something called as cross curves and something called as KN curves. Something called as cross curves and something called as KN curves. KN curves basically is deployed by
kinship, and cross curves is basically deployed by A-shape. So एग्जाम में हमारे दोनों आते हैं, हम दोनों हमारे सिलेबस में हैं, ए शेप भी है हमारे सिलेबस में, के एन कर्व्स भी, हिंज शेप भी हमारे सिलेबस में। तो हम दोनों करेंगे, दोनों के अलग अलग मेथड हैं, अलग अलग तरीके हैं जिससे जीजेड की वैल्यू मिलती है और फिर उससे जीजेड वैल्यू से कर्व प्लॉट होता है। तो ये जो ए शेप है, ये इसमें डेटा will be data will be given in the question. Data will be given in the question. Hinge shape में data will have to be picked up from hydrostatic particulars. हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स से हम निकालेंगे डेटा, यहां पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ठीक है, इज दिस ओके? एनी डाउट्स? Okay, sir. तो कल शुरू करेंगे ए शिप, कल ए शिप के क्वेश्चंस करेंगे, उसका मेथड करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर बाद में हिंज शिप पे आ जाएंगे। Then we'll do that. So that is how it's going to be. ठीक है, is that okay? Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. All right. All right. Okay. See you then. Bye. See you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.